Hello to everyone. Namaste. My name is Prashaddi and I teach Code 55 UGC NET. With this, Code 55 is Human Resource Management, and yes, with this I'm going to start with a paper 1 also. December 2025 के लिए हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं. So obviously this video is all about which book, which mentor, which faculty is best for their subjects. Okay, subjects means not the psychology, English, not that. In paper 1, there are 10 units. In 10 units, which faculty teaches us the best, which faculty bring the best explanation, and which faculty brings the best notes on YouTube. If you are into self-study, then definitely this video is for you. Because I did my self-study, and that's why every now and then I believe YouTube has a lot of videos on paper 1 UGC, so which is a compulsory thing. Okay, this is a compulsory units are going to come into everyone's exam. Okay, so that's why there is a vast videos and lectures on paper 1. That is why I actually came up with the names of the faculty which are teaching so good and with a good explanation. So let's talk about our agendas today. We are going to talk about UGC exam. As I believe that you all know कि हमें qualifications चाहिए होती है. अगर आप colleges में हो तो अपने notes को properly अपने पास रखो. अगर आप pass out हो चुके हो, you're working, still you have to go through lot of content on YouTube for first 1 month and 2 months. You have to bring all the content at one place and then start studying. You can help with that too, or you can go through one videos and you can make your notes. Okay, so the second thing will be the syllabus के talk करेंगे कि syllabus जो है कितना vast है. ठीक है, इतना वास्ट होने की वजह से जो है YouTube पे जो कंटेंट है ना टीचर्स का, हमारे फैकल्टीज का, वो बहुत ज़्यादा है. हमें समझ में नहीं आता कि पढ़ना कहाँ है इसमें से. ठीक है, इसके लिए भी बहुत सारे इजी वेज बना के रखे हैं जो कि है प्लेलिस्ट. ओके, अगर किसी फैकल्टी का जो मैं नाम बताऊंगी उस फैकल्टीज की अगर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर लोगे तो यू विल बी वेरी मच मिनटू, मतलब अगर 100 में से देखा जाए तो यू विल बी कवरिंग एटलीस्ट 80 to 70% वहीं पे कवर हो जाता है. क्योंकि यही चीज वो ब्रेक डाउन करके लेकर आते हैं, एक पूरे लेक्चर में नहीं बताते, वो ब्रेक डाउन करके लेकर आते हैं. वो पढ़ा भी वैसा ही रहे हैं अपने ही कंटेंट में, मतलब अपने जगह पे अपने ऐप पे वो पढ़ा वैसा रहे हैं. बस ये होता है कि सब कुछ ब्रेक डाउन होकर यूट्यूब पे आता है. ठीक है, मतलब वो एक टॉपिक को ऐसे लेकर आएंगे और फिर वो बताएंगे कि अच्छा ये इतना टॉपिक आया था, लास्ट टाइम आया था, इस पे क्वेश्चंस आए थे. सो आपको वो ब्रेक डाउन करके बताएंगे. आपको लगेगा कि यार इतना सारा कंटेंट है, इतना सारा, जबकि वहां पे भी उतना ही कंटेंट है. इससे बड़ा कंटेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत वास्ट है. सब आते हैं, सारे टीचर्स यहाँ आ रहे हैं, तो सिलेबस कवर बहुत अच्छे से होता है. बस ये है कि गैदर करना होता है कंटेंट को सही तरीके से. ओके, so let's talk about the main topic, that book is the good one or the mentors are the good one. First I will talk about the book. Okay, that the book name I have is right now with me is KVS Madan. Okay, this book literally helped me with higher education and people development and environmental. Now I will tell you one thing, ये हर चीज कवर नहीं करी है. ठीक है, इसने भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक बुक नहीं कर पाती. जो एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए, जो दिमाग में हमारे घुसने चाहिए, वो एक्सप्लेनेशन को भी कवर करने के लिए हमें एक्चुअली जाना पड़ता है कि हम यूट्यूब पे जाए और हमें कोई समझाए वो चीज. एक ह्यूमन ही है हम, अगर हमें कोई बताएगा ही नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि अच्छा उसका रियल मीनिंग क्या है. जब कोई 4 शब्दों में डिफरेंट वेज हमें बताता है ना, तब हमें समझ में आता है. और बुक के पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज हो सकती है, वो है ईजी लैंग्वेजेस. पर वो ईजी लैंग्वेजेस में और हमें एग्जाम्पल्स के साथ में चाहिए होता है. Right, so that's why we humans want different kinds of explanation, and one book can't give you that explanation. इसीलिए I would like to say कि you can have this book. Okay, you can have this book for making the notes, for knowing कि अच्छा इसमें easy languages में क्या लिखा हुआ है. अगर तुम्हें वहाँ YouTube से समझ में नहीं आ रहा, अच्छा उनकी definition तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तो what you can have with this book. Okay,
दिस बुक इज एक्चुअली 550 शोइंग मी, बट मैंने अमेजोन से लिया था, आई डिडंट चेक, बट मैं यहाँ पे स्टिक कर दूंगी कि ये कितने की आई थी यहाँ पे। इसी के साथ में मैंने और भी दूसरे नाम लिखे हैं जो कि मैंने तो नहीं खरीदे, लेकिन मैंने इनके रिव्यूज पढ़े हैं कि ये बुक उनको कितनी हेल्प कर चुकी है। दैट इज अरिहंत की बुक जो है, इसमें कहते हैं कि जो PYQs और जो एक्सप्लेनेशंस है वो बेटर दिए हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि KVS मदन में भी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। ठीक है, फॉर मैं कोई एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लगवा दूंगी रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ ऐसे, और हेत्वाभास और फैलेसी, ये मैं यहाँ पे 1 2 यहाँ पे ऐसे करके मैं स्टिक कर दूंगी। ठीक है, कि उसके एक्सप्लेनेशंस कितने अच्छे से KVS मदन में बताए गए हैं। ठीक है, एज फॉर द नोट्स हम जब बनाते हैं तो हमें एक्चुअली बुक में से कुछ चाहिए होता है हमेशा ना। ट्रू मैन की भी बुक बहुत फेमस है कहते हैं, बट आई डोंट सी एज एन गुड राइट नाउ, मुझे नहीं लगता कि उतना होगा। लेकिन ऑसवाल्ड बुक भी जो है बहुत अच्छे से जो स्टूडेंट्स है उन्होंने खरीदी है, उसके मैंने अमेजोन पे भी बहुत देखा है कि उसको एज एन व्यूज बहुत ज़्यादा मिले हैं, मतलब बहुत लोगों ने खरीदे हैं, ऐसे करके मैंने देखा है बहुत ज़्यादा पेपर 1 के लिए। सो ये 4-5 बुक्स है, मैं इसके यहाँ पे लिस्ट बना देती हूँ अभी। उसके बाद में ये 4-5 बुक्स है जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है सबको। मेरे पास KVS मदन है, आई कैन गिव यू दैट गारंटी कि हाँ ठीक है, ये बुक आपको एक आपके साथ रह सकती है। आपको किसी एक टाइम पे जहां पे आपको एक इजी लैंग्वेज आपको अपनी कॉपी में लिखना है, तो ये आपको वो हेल्प कर सकती है। ठीक है, सो बुक का रिव्यू आई गेव यू। ओके, इफ एनीथिंग एल्स इज इन दिस दैट विल बी PYQ। जो PYQ के एक्सप्लेनेशंस है ना हमारे पास, जैसे कि आई विल स्टिक दैट पेज ऑन द स्क्रीन। जब हम PYQs बनाते हैं तो हम कैसे उस क्वेश्चन को कॉपी करते हैं, एंड वी गो टू द गूगल एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इट। इसमें ऐसा है कि आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन इन्होंने वहीं लिख के दे दिया है। ठीक है, और बेटर वे में उन्होंने PYQs को सही तरीके से एक्सप्लेन करके हमको दिया है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड इन KVS मदन। बाकी आई विल से बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे वेज तरीके से इन्होंने कोडिंग कह रही हूँ सॉरी, इन्होंने मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करी है, लेकिन वो भी हर चीज स्मॉल है। ठीक है, एक बुक उतनी कवर नहीं कर पाई, लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग यू, इफ यू वांट टू हैव इट यू कैन हैव इट। एंड दिस वाज माय रिव्यू फॉर द बुक। नाउ लेट्स गो टू द मेंटोर। The mentor with their chapters. Now let's first start with my favorite logical reasoning. Everyone says it's very hard. जब मैं खुद पढ़ रही थी तो मैंने शुरुआत करी थी कुमार भरत सर से। ओके, उनके वीडियोस जो अभी के हैं आई डोंट थिंक सो कि मैं उस पर अभी एकदम ट्रस्टफुल आपको बोल सकती हूँ कि आप जाके वो जरा देखो। वो जब पढ़ा रहे थे दूसरे अकेडमी में, दैट इज अन अकेडमी में, जब वो पढ़ा रहे थे कुमार भरत सर, यू जस्ट हैव टू राइट लॉजिकल रीजनिंग बाय कुमार भरत सर, उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट निकल आएगी। उन्होंने उसमें बेसिक से, मतलब जो इंसान नहीं भी कुछ जानता है ना, वहां से शुरुआत करी थी। मैंने वहीं से शुरुआत करी, उनसे मैंने लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा और मुझे मेरे दिमाग में घुस गई चीज। बस समझने वाली बात है कि थोड़ा टाइम लगता है कि उस सर्कल में घूमते रहते, फिर हम पे एक पॉइंट पे आते कि अच्छा ये है लॉजिकल रीजनिंग का रियल मीनिंग। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। यू जस्ट हैव टू यूज योर लॉजिक ओवर हेयर कि क्या आंसर्स हो सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इज रियली वेल एक्सप्लेन बाय कुमार भरत सर। एंड द सेकेंड नेम आई वुड लाइक टू टेक इज रजत सर। रजत सर के साथ में PYQ जब आप बनाते हैं, जब वो खुद अपने क्वेश्चंस लेकर आते हैं, लिटरली ही ब्लोज योर माइंड विद द वे ही सॉल्व इट। ओके, तो उसको सॉल्व करने के जो तरीके, रजत सर इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो 2 सर हमें मिल गए लॉजिकल रीजनिंग के लिए और हमें रजत सर मिल गए लॉजिकल रीजनिंग के लिए। द फर्स्ट ये हो गया। अब इसके बाद में आते हैं कम्युनिकेशन पे। दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमें लगता है कि इस पे कौन फोकस करता है ज्यादा, लेकिन कम्युनिकेशन से इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। आप बस PYQ लगा लो, धड़ धड़ करके आपको समझ में आएगा कि कितना सही कम्युनिकेशन आपको समझाया गया है जिस फैकल्टी से आप पढ़ते हो। फॉर मी, मुझे लगता है कि जूही मैम जो कि JRF अड्डा से पढ़ाती है, वो मैराथॉन्स लेकर आती है, वो PYQs लेकर आती है। मैं उनके खुद लाइव सेशंस कर चुकी हूँ जब मैं पढ़ रही थी उनके साथ में मतलब मैं उन यूट्यूब पे पढ़ती हूँ। मैंने खुद
ये लिया है, मैं मतलब मैं खुद सेल्फ स्टडी करती हूँ, ठीक है। सेल्फ स्टडी मैंने सिर्फ पेपर 1 के लिए सेल्फ स्टडी करी थी, और आई स्टिल रिमेंबर कि कितना हार्ड होता है कंटेंट को यहाँ से वहाँ लाना, अपने खुद के प्लेलिस्ट बनाना, ठीक है। सो बस यू जस्ट हैव टू डू इज व्हाट, आपने कोई कंटेंट देखा, किसी टीचर का न्यू वे आया है, कोई न्यू टॉपिक आया, न्यू टॉपिक आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ओके जस्ट गो एंड सेव इट, जस्ट गो एंड सेव इट इन योर प्लेलिस्ट बना लो ना अपनी खुद की। मैंने जैसे बनाई, मैं यहाँ पे दिखा दूंगी, ठीक है। मैंने जैसे बनाई है तो वो प्लेलिस्ट बना के रखो ना, जैसे ही टाइम मिले, सैटरडे संडे ऑफिस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ऑफिस कुछ भी है, आके बैठो और उस प्लेलिस्ट को अपने पढ़ो, पहले उस चीज को करो, ठीक है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनवायरमेंटल, दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल जो है वो पढ़ाया जाता है बेस्ट बाय शिव सर। ही इज इनटू अपनी यूनिवर्सिटी राइट नाउ, बट वो पहले JRF अड्डा में थे। तो यू जस्ट सर्च एनी टॉपिक, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, उनके नोट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उसी तरीके से KVS मदन में भी मैंने पीपल एंड डेवलपमेंट के बहुत सारे अदर एक्सप्लेनेशंस देखे थे, जो कि मुझे ऐसे लगे कि इतने सफिशिएंट नहीं है किसी के लिए। लेकिन अगर किसी को शुरुआत से टॉपिक वाइज आंसर्स चाहिए, जैसे टॉपिक वाइज समझना है किसी को, तो इसकी जो शुरुआत करी गई है KVS मदन से, आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन कि वो बहुत ही अच्छे से बताया गया। मतलब कितना जो वाटर लेवल होता है ना हमारे अभी जो वर्ल्ड का जो वाटर लेवल है, वो भी इन्होंने इकोसिस्टम वगैरह, और वो बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे अच्छे से गैदर करके कंटेंट दिया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग इज ऑल्सो वेरी गुड इन द दिस वन, ओके नाउ। क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आया था कि वाटर लेवल क्या चल रहा है करके, ये क्वेश्चन आया था पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट में। तो इसीलिए दैट्स हाउ आई रिमेंबर कि ये बुक में था। सो मैंने बस देखा था, पर मेरा आंसर गलत हो गया, क्योंकि मैंने सिर्फ देखा था, मुझे लगा ये कौन पूछता है। सो दैट इज माई मिस्टेक, डोंट डू योर, ये मिस्टेक तुम मत करना, ठीक है ना। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एनवायरमेंट में और कौन सी टीचर है, दैट इज रचना मैम। उनकी जो आवाज़ है ना इधर घुस जाती है, ऐसे करके टक करके घुसती है और टक करके याद हो जाता है सब कुछ, जो वो पहली बार में बोलती है वो टक करके याद होता है एकदम, ठीक है। तो वो जो पढ़ाती है, उनका जो पढ़ाने का तरीका है ना, वो एकदम घुस जाता है दिमाग के अंदर कि उन्होंने क्या बताया है अभी तक, ठीक है ना। तो रचना मैम हो गई, शिव सर हो गया, एंड द थर्ड वन इज अंशिका मैम। शी इज हैविंग द सब्जेक्ट, मतलब वो पूरा सब्जेक्ट की एनवायरमेंट पढ़ाती है, तो उनका बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है उनके किसी भी यूट्यूब चैनल के वीडियोस में, ठीक है। तो अंशिका मैम, शिव सर एंड रचना मैम फॉर द एनवायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ओके नाउ। हायर एजुकेशन के लिए भी फिर से मैं कहूंगी शिव सर, ही इज बेस्ट इनटू हायर एजुकेशन, क्योंकि वो खुद हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो उनको एंशियंट और जो पहले जो चल रहे थे एंशियंट एंड मॉडर्न, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका जो भी उनका वैदिक वाला जो नॉलेज था, वो सब उनको उसमें आता है, ठीक है। तो वो हायर एजुकेशन बेस्ट पढ़ाते हैं इसमें, तो इसलिए फिर से हायर एजुकेशन के लिए रचना मैम, फिर से हायर एजुकेशन के लिए शिव सर, ओके। हायर एजुकेशन का जो कवर अप है वो भी मैराथन्स में होता है, बहुत सारे मैराथन है, बहुत सारे। एक बार हायर एजुकेशन जैसी कंप्लीट हो जाता है, सबसे पहले मैराथन जाके देखना कि मेरे यहाँ का कौन सा टॉपिक रह गया और वहाँ का मुझे कौन सा टॉपिक करना है, ठीक है। सो दिस विल बी फॉर द हायर एजुकेशन ऑल्सो। नाउ अगर आपके पास कोई और टीचर है, आपको लगता है कि कोई और अच्छे टीचर्स है जो मैंने मिस आउट कर दिए, वैसे मैंने बहुत सारे टीचर्स के देखे हैं सारे वीडियोस, जो भी आप नाम लोगे एकेडमी का मैंने देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सप्लेनेशन हमें ज़रूरत होती है ना एक टीचर से, एक फैकल्टी से, वो मुझे इन टीचर्स में मिलता है। पर्सनली मैंने खुद पढ़ाई करी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, 7 मंथ 8 मंथ जो मैंने पढ़ाई करी है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ओके। सो दिस इज फॉर दोज हु थिंक्स कि अच्छा ठीक है ये वाला ट्राई मार के देखते हैं, जस्ट गो एंड ट्राई इट, ये टीचर्स बहुत बेस्ट है ना। इसी के साथ में आते हैं अदिति मैम। इफ यू ऑल नो देन यू नो, शी इज बेस्ट इनटू ICT, ओके। ICT बेस्ट है, रिसर्च एप्टीट्यूड उनका बेस्ट है, वो इतने अच्छे सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकती है ना कि जो ICT के लिए कोई भी नहीं दे सकता, ठीक है। सो ICT के लिए गो फॉर अदिति मैम, ओके। उनका रिसर्च अभी हो गया। मैथमेटिकल रीजनिंग के लिए रजत सर इज द बेस्ट, मतलब वो खुद को उड़ी बाबा कहते हैं, एंड एक्चुअली वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो एंटरटेनिंग है, अट्रैक्शन बहुत अच्छा है उनका हर चीज़ पे। वो स्टूडेंट्स के लिए लाइव भी आते हैं ये सोचकर कि कुछ डाउट्स होंगे तो वो क्लियर भी करते हैं, और बहुत अच्छे से क्लियर भी करते हैं,
तो इसी के साथ में मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज कि अगर कुछ रह गया होगा तो मैं वो देख लेती हूँ, ठीक है। टीचिंग, हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ऑल फैकल्टीज आई विल लेट यू नो कि सारे फैकल्टीज़ जो है जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं वो बेस्ट पढ़ाते हैं। उनके खुद के अपने अपने नोट्स हैं, उनके खुद के नोट्स को बस कवर अप कर लो, अपने कॉपी में लिख लो, दैट विल बी इनफ। ओके ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ऑल मैटर्स, ऑल फैकल्टीज ना। टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कॉम्प्रिहेंशन। यू शुड गिव योर सेल्फ दिस मच ऑफ टाइम इन अ डे कि आप क्वेश्चन पेपर जाएंगे, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, जस्ट सर्च फॉर इट। वो क्वेश्चन पेपर आप जाएंगे, आप वो क्वेश्चन पेपर के सबसे नीचे जहाँ पे भी आपको कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, आप उसको रीड करेंगे, आप उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे। आप अपनी कॉपी में, मेरी इस कॉपी में नहीं है, ठीक है, मैं पर मिस्टेक करूंगी कि मैं ने पूरी एक मतलब 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैंने इतने दिन तक सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन किया है। और मैं यूज टू सी कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, मेरा ये आंसर क्यों गलत हो गया, वो आंसर। आई यूज टू डू दिस एवरी डे। वन कॉम्प्रिहेंशन इज मैंडेटरी। नो वन कैन टीच यू कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग, means someone can teach you, but they will all tell you the techniques. But this is on you, how you do the reading, how fast you can do the reading, how fast you can learn the words that they are asking for you, how much you can understand from the paragraph. That is more important, ठीक है। ये आपके ऊपर है। कोई बताएगा, आप सुनोगे, आपको लगेगा हाँ ये वाला तो मेरे से बन गया, अब मैं वो वाला देखता हूँ, और फिर वहां गलत हो जाता है। So this is on you, how you will do it. Okay, now comprehension is on you. Now communication, I said Juhi ma'am, mathematical Rajat sir, logical reasoning again Kumar Bharat sir, and logical reasoning के लिए Rajat sir. Okay, logical reasoning जो है, हाँ, लॉजिकल रीजनिंग रचना मैम भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो फॉर एनी अदर टीचर यू कैन गो फॉर इट। नाउ डेटा इंटरप्रिटेशन जो है, इसका बेसिक शुरू करना है आपको, तो प्लीज बेसिक का मतलब ये होता है आपको पता होना चाहिए कि एवरेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, और रेशियो कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस कैसे करते हैं, और डिवीजन कैसे करते हैं। ये 5-6 चीजें हैं, ये पहले पढ़ना। कि हमें कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या तो फिर आपको यूट्यूब से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस, तो मैं ये बता दूं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता दूं, तो मैंने कोर्स नहीं लिया कभी पेपर 1 के लिए। मैंने खुद पे बिलीव कर लिया था कि मुझे पता था कि मैं खुद ही पढ़ लूंगी पेपर 1 के लिए। जो यूट्यूब इतना वास्ट है, इतना पूरा वास्ट नॉलेज है हमारे पास में, मैं क्यों एक कोर्स के लिए करूँ, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मैं तो पास भी हो गई उस चीज में, मेरे को इतने अच्छे मार्क्स भी आ गए, बताओ। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग यू कि अगर आपका ओपिनियन, आपको लगता है कि आपको हर एक चीज जो है वो एक जगह चाहिए, तो यू कैन टेक अ कोर्स। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा हर एक चीज को गैदर करने में, तो स्टिल आई विल से कि कोर्स पे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है, आप इतना भरोसा है कि मैं हर एक चीज को मैं सेव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं उस चीज को मैं जब पढ़ना मुझे होगा कभी भी, फिर कभी, तो मैं इस चीज में, इस प्लेलिस्ट में जा सकती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ। आप खुद अपना कंटेंट जो है जो गैदर कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो दिस इज ऑन यू। सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छी चीज होती है, और कोर्स लेके भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मतलब बहुत अच्छी चीज होती है। दोनों में आप ही का दिमाग लगने वाला है, तो आप ही को पढ़ना है। इसीलिए डोंट फील कि अरे मैंने कोर्स ले लिया तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा, नहीं। दिमाग ही चलना है, दोनों में भी चलना, तो दिमाग ही दोनों में भी, ठीक है। तो यू कांट हेल्प इट विद द कोर्स और द सेल्फ स्टडी, यू हैव टू हैव योर ओन माइंड टू वर्किंग कि मेरे को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं तो दिन भर क्या चलता रहेगा यार, पैसा वसूल ही नहीं हुआ तो क्या होगा, ये भी चलता रहेगा दिमाग में। दैट्स फार बेटर कि आप अपना खुद डिसीजन लीजिए कि आपको कोर्स ही करना है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है। दिस विल बी माई लास्ट थिंग, दैट विल बी कंक्लूजन, कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना करते हुए। तो कंक्लूजन मेरा यही रहेगा कि जो मेरी बुक में मदद नहीं कर सका वो मेरे मेंटोर कर चुके हैं, मैं उन पर ट्रस्ट करती हूँ, तो यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट ऑन दैम इफ यू आर डूइंग द सेल्फ स्टडी। ओके, विद दिस आई विल लाइक टू कंप्लीट ओवर हेयर। आई विल ब्रिंग द अदर subject that is my subject, that is Code 55. I will bring more videos, and the same way I will bring the video for the Code 55 how to have the self study on the YouTube channel. Okay, कि कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर आप भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ रहे, तो डू गो एंड सब्सक्राइब मी, बिकॉज आई एम अ टीचर फॉर दैट।
Okay, so thank you so much and have a very wonderful day. I hope that 2025 is yours. Bye.